Okay, Sher Bahadur, thanks a lot for giving your precious time to me today, and also congratulations for your selection in Steel Authority of India Limited. Thank you, sir. Okay, so Sher Bahadur, now you got selected in SAIL. It's a great moment. So I want you to first tell your very brief to us. I mean your background, your introduction. आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, और उसके बाद आपने क्या किया, एंड प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं? सर एक लॉन्ग जर्नी है ये जो है. बीटेक किया था 2012 में फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई. ओके. सो आई लिव्ड देयर फॉर 4 years. ओके. तो एक कल्चरल डाइवर्स कल्चर भी देखने को मिला, वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा लगा जो है. आफ्टर दैट बीटेक फाइनल ईयर में. And which part of India you are from, Sher Bahadur? I am from Uttar Pradesh, nearby Varanasi, Jaunpur. And then you went to Tamil Nadu. So yes sir. Then sir, in BTech final year I qualified GATE along with my BTech final year, and I did my MTech from IIT Patna along with that. After that I worked in NIT Jalandhar as an assistant professor for 3 years. Okay. And then I from there my contract was terminated. Then prepared for GATE in GATE 18, got All India rank 86. And in ONGC I was in the waiting list 6th. Then in 19, with the help of GATE 19, I am selected in SAIL right now, as you said. And currently I am working in NIT Kurukshetra at the Siemens Center of Excellence, but I am employee of the Coral Technology. So it was a long journey, Sher Bahadur? Yes sir, it was a long journey from 2012 to 21, sir. It's a very long journey, and different type of experience, sir, everywhere. So you have done your MTech, I think, in mechatronics, right? Mechatronics, sir. IIT Patna ka mechatronics department is very famous. Yes sir. So will you tell us something about that department also? Since we were the first batch, sir. That was sir, मतलब सौभाग्य मिला था first batch होने का. उस समय शुरू हुआ था मैकेट्रॉनिक्स वहाँ पर. और उस समय जो है लोग एक फर्स्ट ब्रांच थी वहाँ पे. सहाय सर थे कोऑर्डिनेटर मैकेट्रॉनिक्स के, प्रोफेसर सहाय. नाउ आफ्टर दैट ही वेंट टू यूएसए फॉर सम वर्क आई थिंक, एंड ही वाज वेरी मच experienced teacher who has introduced this program. मतलब उनका विजन यही था कि आजकल चीजें इंटीग्रेटेड हो रही हैं. It's not about just one core branch, it's about all the branches. And since mechatronics is the integration of electrical, electronics, computer science, mechanical, so और सारी चीजें ऐसी हो भी रही, हाइब्रिड हो रही हैं सर. जस्ट केवल वन ब्रांच इज नॉट इनफ नाउअडेज. सो इस चीज को ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को उन्होंने डिजाइन किया हुआ था. तो इसलिए हमारा करिकुलम भी वैसे डिजाइन था. मैथमेटिक्स भी था, मैकेनिकल भी था, इलेक्ट्रिकल भी था. करिकुलम में हमारी मार्कशीट में भी मेंशन है इस तरीके से कोर्सेज सर जो है. तो उस ढंग से वहां पर किया गया था सर. और अगर आप ठीक ढंग से करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर. मींस mechatronics people will be easily absorbed in foreign universities at somewhere else for their PhD, for the jobs also, if you have good knowledge. So it depends upon you sir. जो everybody need mechatronics people, but how much you understand, how much knowledge you have, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर कि आप कहाँ जाओगे, किस ऊंचाई को छूओगे आप जो है. अच्छा, आपका ग्रेजुएशन किस में था शेर बाबू? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सर. इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन मैकेट्रॉनिक्स यू डिड. देन मैकेट्रॉनिक्स सर. Okay. So ये mechatronics that is common for many other branches also, right? Yeah, since I said sir, CS, electrical, mechanical, electronics, IN, इन सब के लिए कॉमन होता है, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. and that's a good thing also जो है एक साथ में काम करने को मिलता है, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है ना. जिसको मैकेनिकल नहीं पता हो तो इसको मैकेनिकल आ जाता है, जिसको CS नहीं पता हो तो इसको कंप्यूटर साइंस आ जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल नहीं पता तो इसको इलेक्ट्रिकल आ जाता है. तो दिस वे पीपल विल ग्रो टुगेदर. ग्रेट. So शेर बहादुर, अभी आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ है, एंड यू वर टेलिंग मी जस्ट नाउ दैट आपको प्लांट भी उन्होंने एलोकेट कर दिया है, आई थिंक वेयर एवर यू आर गोइंग टू जॉइन. सो which place you are going to join finally? Rourkela sir. Rourkela Steel Plant. Okay. That is a good location sir, as far as my knowledge is concerned. Yeah, Rourkela is a very good place also. Yes. So how was the experience? I mean, you had your interview and group discussion. So what was the process of SAIL? Sir, finally my interview was in Chennai sir. Okay. And I reached there before one night. जैसे tomorrow मेरा इंटरव्यू है, मैं आज इवनिंग में पहुंच गया था, वहाँ स्टे किया था. After that it process has been started from 9 o'clock in the morning. So
क्या हुआ था, टोटल 15 स्टूडेंट थे उस दिन में जो है, तो उन्होंने 2 बैच डिवाइड कर दिया था, 8 और 7 का बैच बना दिया था। और तो एक ग्रुप का जीडी जीटी चलने लग गया था, दूसरे ग्रुप का पीआई पर्सनल इंटरव्यू चलने लग गया था सर। तो मेरा जो है फर्स्ट हाफ में पहले पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, और मेरा जीडी जीटी, क्योंकि मैं सेकंड बैच में था, सीरियल वाइज नेम से होता है ना सर, तो एस लास्ट में आता है उस ढंग से। तो मेरा जो है जीडी और जीटी जो है सेकंड हाफ में हुआ था, मेरा पहले पीआई हो गया था, और पीआई में लंच से पहले वाला कैंडिडेट मैं था जो। तो इंटरव्यू में सर ऐसे उनका हुआ था जो है, उसके बाद यस सर, आफ्टर लंच हुआ था ठीक ठाक से, उसके बाद फिर जीडी एंड जीटी सर। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा कि ग्रुप डिस्कशन कैसा रहा था और क्या टॉपिक आया था, अगर आप बता पाए, अगर आपको ध्यान में हो, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने? तो सर पहले कहाँ से शुरू करूँ? जीडी से स्टार्ट करें आप। तो सर जीडी में सर आपसे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी, इवन दो मैं बहुत कम टाइम के लिए आपके साथ कांटेक्ट में रह पाया था। मैं मंडे को ज्वाइन किया था और 12 थर्सडे 4-5 दिन अटेंड कर पाया था, लेकिन दैट वाज वेरी मच बेनिफिशियल सर। I'll definitely I can say that in case of GD, your misguidance has been help a lot sir। क्योंकि मैंने सर जीडी की शुरुआत करी थी, जीडी का टॉपिक था कि एग्जैक्टली सर मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना है कि उसमें ऐसा था कि आप लोग जैसे लव मैरिज को प्रमोट करते हैं नहीं करते हैं, काइंड ऑफ दैट, मतलब लोगों ने इस चीज से उसको ज्वेल कर दिया था, लेकिन एग्जैक्टली टॉपिक नहीं था। पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दैट। तो फ्रॉम योर गाइडेंस आई स्टार्टेड दैट जीडी, एंड आई हैव गिवन सम इनिशिएशन, गुड इनिशिएशन। आफ्टर दैट कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, तो आपने जैसा ही कहा था कि आफ्टर सम टाइम इनवाइट अदर्स आल्सो, सो आई डिड द सेम। और फिर सर उस पर डिस्कशन हुआ जो है कि सबने अपने व्यूज रखे, बीच में मैंने 1-2 बार इंटर भी किया। आफ्टर दैट I wanted to conclude, but somebody else has been started immediately, so I just stopped it. Okay, let him conclude. मतलब ऐसा एम्बिगिटी नहीं क्रिएट करना है वहां उस जगह, तो वो कंक्लूड किया। लेकिन अच्छा था सर, मैंने अपने पॉइंट्स भी रखे थे, लोग एग्रीड भी थे उस पॉइंट से। और कुछ सर मैं पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे पास जुडिशियल पॉइंट्स भी थे, जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह भी थे, तो वो सारे भी आई थिंक वो सारा कुछ कंटेंट था मेरे पास सर बोलने भर का, तो अच्छा आई थिंक वो एक इंप्रेशन अच्छा क्रिएट किया सर इनके साथ जीडी। तो उसके बाद सर उनका तुरंत जीटी हुआ था ग्रुप टास्क, जिसमें था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टिल पॉवर्टी से जूझ रहा है, तो उसमें 10 पॉइंट्स थे, तो उसमें क्या रीजन है उसको आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अच्छा, पॉइंट्स दे दी और आपने प्रायोरिटी बनाना है। अपनी प्रायोरिटी बनाई थी, 10 पॉइंट्स थे सर। उसमें बताना है कि पहले पॉइंट पे लोग इलिटरेट हैं इसलिए पॉवर्टी ज्यादा है, या फिर क्या दिक्कत है, रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, इस ढंग से बहुत सारे 10 पॉइंट से था, और बहुत माइन्यूट, बहुत माइक्रो लेवल पे डिफरेंस था उसमें जो है। और उसमें आपको कन्विंस करना था सामने वाले को कि नहीं जो आप कह रहे हो वो सही है। तो मैं सबको कन्विंस नहीं कर पाया था, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने सोचा कि नहीं, जबरदस्ती अपनी बात पर भी नहीं अड़े रहना ठीक है। आप कुछ बातें याद आई मुझे उस टाइम पे कि अगर लोग ज्यादा रेडिकली एक ही तरफ भाग रहे हैं और 3-4 लोग सपोर्ट में हैं, तो कभी कभार उनके साथ भी हो जाना एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो मैं फिर उनके साथ हो गया, अपने डिसीजंस मैंने चेंज कर दिए थे, मैं अड़ा नहीं रह गया सर। कुछ लोग अड़े रह गए थे, आई थिंक उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ उस जगह पे। और तो आई थिंक वहाँ हो जाना चाहिए, जब देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। और उसके बाद सर थर्ड जो पार्ट था वो केस स्टडी था जो है। तो केस स्टडी में ऐसा था कि फादर और एक सन की स्टोरी थी, जिसमें फादर सन बहुत टैलेंटेड था और जो है उसको आईएएस बनना था, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था, फिर उसने नहीं किया। मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा था, फिर उसने कुछ प्राइवेट कोचिंग कर पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर उसने फिर किसी लड़के से शादी हो गई, फिर ऐसी कुछ सिचुएशन थी सर जो है। तो फाइनली बताना था हु वाज द कौन अच्छा था इसमें से, अगर आप होते उस जगह पे तो क्या करते हैं। तो अपना अपना ओपिनियन लोगों ने दिया था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, दैट वाज जस्ट योर परसेप्शन कि आप क्या सोचते हो और आप उस चीजों को कैसे रखते हो। तो उसमें भी सर मैंने कन्विंस कर दिया था लोगों का कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ सही है। और तो सर ये मेरा मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और केस स्टडी का एक पार्ट था हमारा टीम। ओके। तो ये सर हमारा सेकेंड हाफ में हुआ था, और ये लगभग सर एक पैनल बहुत फ्रेंडली था सर जो है। पहले हम लोग जब एंटर किए तो सब कुछ सबसे इंट्रोडक्शन पूछा, आराम से सबको बैठाया,
वो लोग बहुत फ्रेंडली थे सर जो है। उसके बाद जब पहला टास्क खत्म हुआ तो फिर 5 मिनट के लिए हंसी मजाक किया उन्होंने, फिर 30 मिनट का हुआ, तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स पूरा चला था सर ये पूरा प्रोसेस तीनों। यस सर। तो ये अबाउट, जी सर। मतलब सेल में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप टास्क भी होता है और केस स्टडी भी होता है? हाँ 3 सर था। केस स्टडी था सर, लगभग 2 पेज का सर, उसको पढ़ना और उसको करना एक अलग, बहुत लोगों के पास ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है उन सब चीजों का, एक बार हो भी जाता है कि इतना जल्दी कैसे पढ़ें, और बगल वाला शायद आपके फटाफट पढ़ मतलब आगे बढ़ता जाता है। तो उसमें अच्छा, और अगर आपको कोई टफ वर्ड था तो आप टफ वर्ड की मीनिंग आप उनसे पूछ सकते थे, वो लोग हेल्प भी कर रहे थे कि इस वर्ड का मतलब ये है। तब आपको समझ में आता है समटाइम कि अच्छा ये यहाँ तक पहुंच गया, अभी तो मैं इस वर्ड तक पहुंच ही नहीं पाया। तो समटाइम वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है सर, लेकिन मैंने उसको आराम से किया था अपने स्पीड से सर। यस सर। ओके, अब इंटरव्यू के बारे में बताएं आप शेर, तो इंटरव्यू कैसा गया? तो इंटरव्यू में सर सबसे पहले जब मैं एंटर किया तो वो मैंने उनको ग्रीटिंग्स दिया, गुड मॉर्निंग सर, और आई थिंक गुड मॉर्निंग बोला था सर, क्योंकि 12 बजे से पहले ही था सर मैं इंटरव्यू था। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आपकी रैंक काफी अच्छी है। सर मेरे ओबीसी कैटेगरी आती है, तो बोले कि ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक अच्छी है, आई थिंक यू आर द एट टॉप मोस्ट प्लेस इन द ओबीसी। मैंने कहा सर थैंक यू सर, मुझे पता तो है नहीं, लेकिन थैंक यू सर। बोले हाँ हमें पता है। तो फिर जो है मेरे बारे में थोड़ा बहुत पूछा, तो मैंने बताया कि अभी मैं प्रेजेंटली जो है नाइटीपुर क्षेत्र में सीमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम करता हूँ, और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है इन सारे सेंसर्स पे है, इस पे डीसीएस पे है, जो मेरा सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर, मैंने वो चीज उनको बताया, क्योंकि मैं चाहता था भी कि टेक्निकल इंटरव्यू हमारा प्योर तरीके से। तो उन्होंने उससे पूछा भी टेक्निकली, मतलब वो लोग भी काफी कुछ चीजें वही सारी यूज करते हैं वहां पर जो है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि अगर ट्रबल शूट करना रहेगा तो कर लोगे आप, मतलब स्क्रैच से चीजों को बनाते हो, लेकिन चीजें तो ऑलरेडी रहेंगी तो उसको ट्रबल शूट करना होगा, डायग्नोस्टिक्स करनी होगी। फील्ड डिवाइस ऑलरेडी रहेगा तो उसमें एरर आएगी तो उसको रेक्टिफाई करना होगा। मैंने कहा सर हाँ मैंने ऑलरेडी इन सब चीजों को सर मैं हैंडल करता हूँ, तो आई कैन हैंडल दोस थिंग्स। और तो ये टेक्निकल पार्ट हो गया। नॉन टेक्निकल में भी सर उन्होंने पूछा था कि चेयरमैन कौन है, तो सर एक बार के लिए मुझे शोमा मैम, मैंने कहा शोमा मैम, बोले पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। सर वो लास्ट में याद भी नहीं आ रहा था, मैंने कहा शोमा मंडल मैम। बोले अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि कितने प्लांट्स हैं, तो मैंने कहा 5 नेगेटिव प्लांट्स हैं, तो नाम पूछा था। फिर उनका कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स मतलब बार्स और बिलेट्स क्या क्या बनाते हैं हम लोग, वो सारी चीजें। तो टेक्निकल क्वेश्चन सर ये सारे हुए थे जो है, मतलब नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, और ज्यादातर मेरा इंटरव्यू सर टेक्निकल पे हुआ था, और उसमें मैं कॉन्फिडेंट था जो है कि हाँ मैंने जो आंसर दिए वो सही है। तो और आते समय जब एग्जिट कर रहा था तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वी आर वेरी हैप्पी विथ यू। तो इस टाइम से उन्होंने कहा था उसी समय। तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू से काफी अच्छा गया था मतलब। तो आपका एचआर और टेक्निकल दोनों इकट्ठा हुआ था? हाँ सर, एक ही साथ में हुआ था। तो कितने मेंबर होंगे अंदर? अंदर 4 मेंबर थे सर। वो 4 चार बायोडाटा फॉर्म में भरवाते हैं सर शुरू में, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अच्छा आपसे 4 बायोडाटा फॉर्म भरवाते हैं। एक एक अब आपको बायोडाटा फॉर्म एक एक पैनल मेंबर के पास में होता है। अच्छा। तो वहीं से समझ आता है कि कितने लोग रहेंगे वहां पर अंदर में। एक लेडीज थी और 3 जेंट्स थे, और आई थिंक उसमें से एक टेक्निकल थे और एक एचआर, एक ऐसे कुछ थे, एक और भी सर जो है। तो आपको आइडिया 50 लग गया था कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है? सर उन्होंने शुरुआत में भी बोला था रैंक सही है, आते समय भी बोला, तो मुझे लगा कि शायद सर सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन सर जब तक लिस्ट बनाने, ऐसे ओएनजीसी में भी लगा था सर उस टाइम पर, तो जब तक रिजल्ट फाइनल हो नहीं जाता है आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है सर जो। ग्रेट। तो यू नेवर नो कि आपने, हो सकता है कि आपको कोई मिस्टेक्स बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन सामने वाले ने उसको नोटिस कर किया हो और वो उसके लिए बहुत बड़ी हो। तो जस्ट वन मिस्टेक कैन ruin your लाइफ सर। तो या सो शेर बहादुर, आपने बहुत लंबा मतलब जर्नी देखी है यहाँ तक आने के लिए। मैं आई मस्ट से कि मास्टर्स भी, जॉब्स भी, एकेडमिक्स की जॉब, इंडस्ट्री की जॉब, पब्लिक सेक्टर की जॉब, तो यू हैव डन ऑल दिस। अब लास्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या आप जो सुनेंगे, लोग आपका ये इंटरेक्शन सुनेंगे, इनको मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैं सर उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी किसी चीज से ना इंसान को हार नहीं माननी चाहिए अपनी सिचुएशन को लेके। और और भी बहुत सारी सिचुएशंस है जो शायद मैंने आपसे नहीं बताया है, नहीं कहा है इन सब चीजों में मीनवाइल।
बट इंसान को ट्राई करते रहना चाहिए। मतलब मेरे पापा कहा करते थे कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि वत्स अपना कर्म करने में आपकी जो है वो होना चाहिए। डोंट वरी, डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, लगे रहो, आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी जो है। और सर मैंने भी वही किया, उतना तो नहीं लगा रहा, लेकिन जो है अलॉन्ग विथ फैमिली, अलॉन्ग विथ पढ़ाई, जॉब, सब चीज में जितना भी हो सका सर उतना बैलेंस किया गया जो। तो हो सकता है सर, सबका हो सकता है, अगर मेहनत करेंगे तो। अगर मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है सर ऐसी सिचुएशन में। It is good. You are a perfect example of patience, शेर बहादुर, and I am sure जो आजकल की जनरेशन है, अगर उसमें पेशेंस आ जाए जनता में, तो थिंग्स आर, आई मीन, यू कैन अचीव। और कई चीजें तो पेशेंस के साथ ही आती हैं, वो आपके हाथ में होती नहीं है। जी सर, जी सर। मतलब जैसे आपने मेरे को इंटरेक्शन से पहले बताया अबाउट योर रिजल्ट्स इन ONGC एंड ऑल, सो वो आपके हाथ में नहीं होता, देयर इज एक्स फैक्टर। यस सर। तो उसका ओनली तोड़ यही होता है कि लगे रहो, एज यू सेड, लगे रहो Yes, और sir. वेट करते रहो। बस एफर्ट जी अपने हाथ में है, जो आपको सीरियसली करना चाहिए। जी सर। बाकी द रेस्ट इज इन हिज हैंड। जब वो Yes, डिसाइड sir. करेगा तब चीज मिलेगा। Yeah, ये yes. तो रीजन है, ये दिस इज द रीजन आई रिकॉर्ड द स्टोरीज ऑफ पीपल लाइक यू, सो दैट इट बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर Other people's get benefits, sir. True. दैट True, इज sir. द, क्योंकि जब सुनेंगे ना कि 2012 में आपने ग्रेजुएशन किया और अब आपको इवेंचुअली जाके वो ड्रीम जॉब आपका जो है उसमें मिला है, तो बच्चों को एक रिलीफ जरूर मिलना चाहिए उससे, कि नहीं यार, हम तो ऐसे ही इम्पेशेंट हो रहे थे, हमने तो 2019 में ग्रेजुएशन किया। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 18-17 में ग्रेजुएशन किया, एंड देन दे थिंक के बहुत बूढ़े हो गए, एंड देन दे आर पुटिंग एफर्ट फॉर द वेरी लॉन्ग। तो जब वो ऐसे आप आपकी स्टोरी जैसे देखेंगे, तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेशन दे विल फील फॉर दैट। That Yes, is the sir. purpose. So, Yes. Sher Bahadur, we come to an end of this beautiful session, inspiring session from your side, and Thank you, thanks a sir. lot for your time once again. सर आपका भी बहुत योगदान रहा सर इसमें जो है, खास करके GD और GTA केस हिस्ट्री में सर जो है। Okay, thank you, उसमें Sher Bahadur. थैंक यू सर।